عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, پاکستان میں اس وقت ایک بھرپور قسم کی موومنٹ چل پڑی ہے ہر طرف سے, اور یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے جس طرح شہباز شریف کو جتایا اور شہباز شریف اور زرداریوں کو ہارنے کے باوجود فل ریگنگ کر کے ہارنے کے باوجود واپس جتوایا اور ان کو سرکار دی, آج وہ سرکار نے اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے, اکانومی ٹوٹل تباہ, سیکیورٹی ختم, ہر لحاظ سے عام آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا ہے, اور اب اس کے لیے مختلف چیزوں کی مختلف موومنٹس چل رہی ہیں. اب ایسے میں وکیلوں نے جو موومنٹ شروع کی ہے, جو کہ مجھے اس وکیلوں کی موومنٹ سے کوئی خاص امید تو نہیں ہے, لیکن عطا اللہ کرد جو کہ پچھلی لائرز موومنٹ میں مشرف کو ہٹانے میں کامیاب ہوا تھا, اس عطا اللہ کرد کو واپس سامنے لایا گیا ہے. میں نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعتوں پہ اعتماد نہیں, بالکل نہیں, لوگوں کو نہیں ہے, مجھے بھی نہیں, مگر ایک سیاسی جماعت. میں عمران خان کا میں نے 1000 دفعہ کہا ہے, یہ کل وزیر اعظم بنے گا, لانگ لائن لگی ہوگی, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. مگر اس وقت وہ ایک لیڈر ہے بالکل بہت بڑا, جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ مرد کا بچہ ہے, مرد کا بچہ ہے کہ جو 3 سال سے 22 اور 25 کور کمانڈر کی طاقت کے سامنے ابھی بھی کھڑا ہے, چٹان کی طرح کھڑا ہے. سلام کریں. جو پاکستانی ہے اگر وہ اس سے جرأت نہیں انسپائر کر سکتا, اس سے طاقت اور ہمت نہیں لے سکتا, وہ پھر پاکستانی ہے. میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں, اس کی سیاسی جماعت کی. اس دن بھی میں نے لاہور میں کہا, بہت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. 250 300 350 تو تحریک انصاف کے وہ کنوکٹ 10 سال 15 سال 10 سال 15 سال جن کو سزائیں ملی ہیں, کیا بوڑھا کیا عورت کیا مرد, سب اڈیالہ جیل میں موجود ہے. اور باقی جو لوگ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں باقی ملک میں موجود ہے. کیا لوگ ہیں یار, پھر بھی کہتے ہیں کہ تحریک نہیں چلے گی, تحریک کسی کا باپ نہیں روک سکتا. ایک آدمی نے, ایک یہ 250 300 جو اڈیالہ میں ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان پنجاب کے دوسرے صوبوں میں دوسرے علاقوں میں بن, ایک آدمی نے حکومت سے معافی نامہ نہیں مانگا کہ میری جان, یہ مرد کے بچے, یہ لوگوں کی امید ہے, اور اس امید کو آگے لے جانا ہمارا کام. اس لیے یہ تقریریں تو بہت اچھی کر لیتا ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. اس نے ابھی ایک تقریر میں عمران خان کی بہت تعریف کی ہے, اور پاکستان کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ سرکار ہے اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت عمران خان ہے. اگر عمران خان ان کے آگے ایسے ہی سرنڈر کر دیتا جیسے شہباز شریف نواز شریف نے کیا ہے, جیسے زرداری بلاول بھٹو نے کیا ہے, جیسے MQM آرمی ٹولے نے کیا ہے, یہ سب جس طرح آرمی کے آگے سجدے کر رہے ہیں, ایسے اگر عمران خان بھی کر دیتا تو آج عمران خان کی سرکار کو, شہباز شریف کی سرکار کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. عزیز دوستوں, دوسری طرف آج کل بڑا انہوں نے عمران خان کی بہن کے اوپر وہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی بہن نے ایک یوٹیوبر کو پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ اگر مودی جی چاہتے تو پاکستان کو مئی 2025 میں ہی فکس کر چکے ہوتے. فوج کی کبھی تعریف مار کا حق نہیں. انہوں نے پاکستان مودی کے ساتھ مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا. تمہارے خیال مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا. وہ تو مودی کیسے چاہتا, ہماری وہ ہم تو بہت اچھا نہیں, اور ہمارے ان کے کیا دنیا پوری دنیا گواہ ہے. دیکھو انہوں نے کیا, مودی چاہتا, مودی رکا کیوں تھا, ڈر کیا تھا. اتنا بڑا ملک ہے, تم اس ملک کو دیکھو. مودی نے خود کہا کہ پاکستان کو حملہ ہی کر دیا, اسرائیل پیچھے, پاکستان نے اس بار رسپانس بہت تگڑا کیا. بات سنو, اسرائیل پیچھے تھا, یہ یاد رکھو. پاکستان کے پیچھے تھا اسرائیل. انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا تھا پاکستان سے. یہ تو فساد مچ گیا ایران کا
क्या था, उन्होंने दुबई वगैरह ने कर लिया ना, अभी पाकिस्तान की बारी आ रही थी और ये गए थे ये जो अब्राहम अकॉर्ड कर रहे थे ना अमेरिका में, ये वही था जो ट्रम्प करवाना चाहिए। जो ट्रम्प क्यों इनकी तारीफें करता है, तुम्हारा ख्याल है ट्रम्प को ये अच्छे लगते हैं? ट्रम्प तो एक अपने मुल्क में एक वैशी सा आदमी, उसे वो ट्रम्प अपने मुल्क में इस तरह हिला हुआ है, उसकी लोग उसके खिलाफ है, ट्रम्प की अपनी कुर्सी नहीं है। तो इन्होंने, तुम सोचो, अब्राहम अकॉर्ड कराना था, इजराइल को पाकिस्तान मिल चुका था, इजरायलियों से मिल रहे थे, ये राब्ते कर रहे थे, तो इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। ये बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बताया, मेरी अपनी अकल है। और उसके बाद इन्होंने, तुम्हारा ख्याल है, और इन पाकिस्तान को, इंडिया को ये, और फिर वो मोदी क्या करते हैं, ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, ट्रम्प चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना, मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, मई 2025 में जब इंडिया ने हमला किया था, तो पाकिस्तान इजराइल का अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए भी तैयार हो गया था। इस बात को लेकर बहुत ही हंगामा मचा हुआ है और डिमांड आ रही है कि इस औरत को गिरफ्तार किया जाए। इतनी सी बात पे इमरान खान हो, अल्ताफ हुसैन हो, बलोच हो, पख्तून हो, कश्मीरी जो आजकल पीओके में हो रहा है, उनके खिलाफ तो फौरन एक्शन ले लिया जाता है। अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो किस पे नहीं लिया जाता? मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है, क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए, जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं की। ये मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल रोज लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं और आर्मी के खिलाफ पूरी चार्जशीट लगाई हुई है, लेकिन इनके खिलाफ ये इनके बाप की हिम्मत नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोच भी सकें कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको मैंने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के लाखों मदरसा स्टूडेंट्स हैं, एक आवाज़ पे सड़कों पे आ जाएंगे। और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये देवबंदियों के सबसे बड़ा मौलवी है मौलाना फजलुर रहमान, और देवबंदी पूरे पाकिस्तान में है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं मेयर था जमशेद टाउन का कराची में, तो मुझे एक मेरे स्टाफ ने एक बार बताया कि जब पता नहीं मुहर्रम थी या रबीउल अव्वल था या कुछ ऐसा था, तो उसमें मौलवियों का आपको पता है जुलूस और ये सब होते हैं। तो मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि सर यहाँ हमारे जमशेद टाउन में बनोरी टाउन का मदरसा है, मस्जिद और मदरसा है, तो आपको उधर विज़िट करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो मैंने फिर उनसे कहा ठीक है, तो फिर मुझे वहाँ से इनविटेशन आया बनोरी टाउन से और मैं मिलने गया अंदर। तो बाहर से तो मस्जिद थी, और जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मैं देखता हूँ कि मस्जिद के चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें, 4-4, 5, 3-3 माले की, और मस्जिद के चारों तरफ एक बड़ी 4 दीवारी है, यानी इट वॉज ए बिग कंपाउंड। तो मैंने कहा ये बिल्डिंगें
किराए पे दी हुई हैं, क्या है ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है क्या है? बोले नहीं, यहाँ पे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के स्टूडेंट आते हैं देवबंद की एजुकेशन हासिल करने के लिए। और मैंने देखा वहाँ पे अरबी जुब्बे पहन के अफ्रीका के लोग थे और दूसरे भी कई लोग थे, ये इंडोनेशिया मलेशिया के लोग नज़र आ रहे थे। शक्ल से पता चल जाता है। पता चला 10,000 स्टूडेंट खाली उस मस्जिद के अंदर रह रहे, कराची के मरकज़ में। उससे बड़ा बनौरी टाउन का एक और इनका मदरसा है कराची के आउटर स्कर्ट में, वो इससे बड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना इनका क्या कर सकते हैं। मौलाना ने तो इनको कारगिल का भी कह दिया, मौलाना ने इनको ये भी कह दिया कि मेरे खिलाफ तुम लोग एक मूवमेंट चला रहे हो, जो चलाना है चला लो। कई चीज़ें मौलाना कह रहे हैं, लेकिन ये अब मौलाना के खिलाफ क्या मूवमेंट चलाई इन्होंने कि इसके दादा अफ़गानिस्तान से ब्रिटिश इंडिया माइग्रेट करके आए थे। तो ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, अफ़गानी है, ठीक है। और मसला ये है कि अफ़गानिस्तान के तो फिर अहमद शाह अब्दाली भी थे, अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब भी तो थे। वैसे भी आपको पता ही है वो एक और इशू है जिसमें ख्वाजा साहब ने एक दफ़ा बात की थी, ये जो पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स हैं जी के नाम चेंज करने चाहिए उनके, क्योंकि लुटेरों के नाम पर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, उस पर बहस छिड़ गई। बिल्कुल, ये ना देखिए ना, ये तो सारी फ़ौज ने गौरी और अब्दाली बाबर और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने तो अफ़गान और मुग़लों के नाम के ज़माने उनके नामों पे रखी हुई। और आज ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं वो तो लुटेरे थे और इनको आपने क्यों ये किया है। अब बात यह है कि जब ये नाम रखे गए थे उस वक़्त हमारे तल्लुकात अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों के साथ अच्छे थे ना। हम तो उस वक़्त समझ रहे थे कि ये हमारा ही हिस्सा है एक किस्म का पाकिस्तान। तो इसलिए हमने तो ज़ाहिर है तारीख़ में से वही फिगर्स निकाले जो कि बड़े अग्रेसिव थे अगेंस्ट द हिंदूज। जी जो जंगजू थे, जो बिल्कुल वो सोमनाथ का वाली बात जो अटैक हुए महमूद गजनवी। तो अब इन्होंने इसलिए अपनी मिसाइल्स के भी नाम ये रख दिए। अब ख्वाजा साहब पड़ गए हैं, कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अफ़गानिस्तान आपके साथ इस वक्त दुश्मन बन चुका है। तो अब तो ये भी अभी इशू बन गया है। तो उनके नाम पे आपने मिसाइल क्यों बनाए? अब ये आप देखें नजम सेठी क्या कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली और गजनवी और गौरी हिंदुओं का कत्लेआम करते थे इंडिया में, तो इसलिए हमने इनके नाम पे रखे, वैसे अब हटा देना चाहिए ये नाम। लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम करते थे। अहमद शाह अब्दाली ने जब जंग जीती थी मुग़लों के ख़िलाफ़ और कोई मामूली छोटा सा कोई मसला हो गया था कि दिल्ली में किसी ने अहमद शाह अब्दाली के कुछ फ़ौजियों को ऊपर हमला कर दिया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने हुक्म दे दिया कि अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक कत्लेआम जारी रहे। तो दिल्ली में किसी की शलवार उतार के नहीं चेक की गई थी कि हिंदू है कि मुसलमान है, बेधड़क कत्ल करते थे। आप क्या समझते हैं, महमूद गजनवी जब गजनी अफ़गानिस्तान से चल के आता था तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते या सोमनाथ तक पहुंचते पहुंचते इसको आज के पाकिस्तान का केपी, पंजाब, सिंध सब रोनता हुआ आता था। तो क्या वहाँ पे सबको पकड़ पकड़ के चेक करते थे कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो? है भाई, प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों के ऊपर करते हैं कि नहीं नहीं ये तो हिंदुओं का कत्लेआम करते थे। ये हिंदुओं का कत्लेआम नहीं करते थे, ये डाकू थे, इनका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था। अब्दाली हों, नादिर शाह हों, गौरी हों, गजनवी हों, जितने भी खिलजी थे, तुगलक थे, मुग़ल थे, मुझे कोई एक इंडिया पे हमले करने वाले मुसलमान इन्वेडर का नाम बता दे जिसने कभी हज किया हो, जो कि हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। महमूद गजनवी 17 बार इंडिया को लूटने के लिए आता है। जितना गजनी से फासला हिंदुस्तान का है ना सोमनाथ का, उससे कहीं कम फासला गजनी से मक्का का है। हज हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है अगर उसकी हैसियत है तो। और इन डाकुओं की तो हैसियत थी ना, कभी हज करने नहीं गए, इधर आते थे हमला करने। मुग़ल इतने सारे दर्जन से ज़्यादा बादशाह बने, कभी आपने सुना कि किसी मुग़ल ने हज किया हो? क्योंकि इनको ये डर होता था कि हम यहाँ से हज करने जाएंगे, पीछे हमारा तख्ता उलट देगा कोई खिलजी, कोई तुगलक। कभी किसी ने आपने सुना कि कोई हज करने गया हो? तो ये तो डाकू थे, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। नाम इस्लाम का यूज़ करते थे ऑफ कोर्स कि हाँ हम इस्लाम फैलाने जा रहे हैं,
घंटा इस्लाम फैलाते थे। तो अजीज़ दोस्तों, ये आजकल पाकिस्तान में जो मौलाना ने शुरू किया है, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इट इज़, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मौलाना इस वक्त आर्मी के इशारे पे खड़े हुए हैं, वकीलों को भी आर्मी खड़ा कर रही है ताकि रियल जो अपोजिशन है, जैसे इमरान खान है या जो इधर कश्मीर बलूचिस्तान केपी में हो रहा है, उनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि मौलाना ख़ास तौर पे पख्तून लीडर हैं बलूचिस्तान और केपी के पख्तूनों के, तो इसलिए इनकी पूरी शायद कोशिश है कि वो रियल ऑथेंटिक जो इस वक्त अपोजिशन है उसको हाईजैक किया जा सके। लेकिन जो भी है, कम से कम मौलाना इस वक्त जितनी बातें कर रहे हैं, ये बातें हैं तो जेन्युइन ना, हर आदमी के दिल पे तो लगती है ना कि हाँ मौलाना ने बात तो सही की है, हकीकत तो यही है। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब सी केओस की सिचुएशन है और गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही, गवर्नमेंट का कोई है ही नहीं एग्जिस्टेंस। और मोतीउल्लाह जान एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो आजकल मौलाना की पूरी कवरेज कर रहे हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल है MJT मोतीउल्लाह जान TV, तो वो उस पर मौलाना को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौलाना ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और दलील के साथ, यानी आर्ग्यूमेंट्स के साथ बातें की हैं। तो ये आपके सामने मैंने इस वक्त करंट सिचुएशन रखी है कि हाउ पाकिस्तान इज़ मैनेजिंग दीज न्यू मूवमेंट्स। न्यू से मतलब हैं तो पुराने लोग, लेकिन ये अब जाके आर्मी के खिलाफ सामने आके खड़े हुए हैं। तो लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बहुत जल्द बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। मगर मौलाना फजल रहमान ने आज जो तकरीर की है उसके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आउट क्लास। ये दलील की एक मेराज थी, ये दलील के हथियार का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस्तदलाल के साथ मौलाना फजल रहमान ने जो तारीख के औराक पलटे हैं, जो सियासी जुबान में गैर सियासी मुखालफीन को समझाया है, उससे एक बात साबित होती है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल सियासत और सियासतदानों के हाथ में। कोई बड़े से बड़ा शरीफ आदमी या बड़े से बड़ा फौजी जर्नल भी अगर पाकिस्तान में आ जाए, और जो आता भी रहा है, पाकिस्तान का ना तो माजी उसने बेहतर किया बल्कि ख़राब किया, और ना ही मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मौलाना फजल रहमान ने एक वाहिद वही हथियार इस्तेमाल किया जो बतौर सियासतदान उनके पास, और वो था दलील का हथियार। और इस दलील के हथियार ने उस गुलेल को पाश पाश कर दिया जिस गुलेल के साथ उनको निशाना बनाया जा रहा था। तुमने मेरे खिलाफ उस वक्त भी गंदे प्रोपेगंडे किए, गलीज तरीन प्रोपेगंडे किए। कभी कहा डीजल परमिट खरीदे हैं। भाई डीजल परमिट अगर मैंने लिया है तो दस्तावेज होगा ना, परमिट के मानी दस्तावेज। 2003-04 में आपने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगंडा किया, आज 2026 है, कहीं कोई उसका रिकॉर्ड का कोई पुर्जा तुम्हें आज तक मिल रहा है? प्लाजे ले लिए हैं, फैक्ट्रियां बना ली हैं, दुबई में होटल बना लिए हैं, 80,000 की लस्सी पी ली है। 2 दिन मैं होटल में ठहरा हूं, 80,000 की लस्सी पी दी हुई। शर्म भी नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए। और मुझे नहीं पता, अगर खुदा न खास्ता आप कोई मुहिम जोई में मसरूफ हैं, कोई ऐसे काम करने में मसरूफ हैं जो आप अपनी कौम से छुपाना चाहते हैं, और मेरे साथ लड़ाई छेड़कर शोर शराबे में आप अपना काम निकालना चाहते हैं, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस पहलू को नजरअंदाज न करो